Good morning, Adit. Am I audible to you? Yes, sir. Good morning. Okay, so today is the third lecture of periodic table. In the last lecture, what we have done, we have completed the shielding effect, effective nuclear charge, Slatter's rule, all those things, right? How to deal with or what are the variations of shielding effect and effective nuclear charge along the period and down the group. That is what we have learned, right? Yes, sir. So today we are moving to the next property. So that is atomic radius. So atomic radius. Today we are going to learn this, right? So what are the learnings we are going to do? एक तो atomic radius क्या होता है? There are different types of atomic radius. उसको समझना है. Next, expected trend. What are the factors which can affect the atomic radius? Trend क्या expected है? And what is the real trend? What are the exceptions, irregularities? And we will do some problems. And that will take the whole lecture. ठीक है? Okay. चलो, let us start. तो देखो theoretically how we define atomic radius. Theoretically atomic radius कैसे define होता है? Let's say this is the nucleus and ये outermost shell है, ठीक है? तो ये nucleus and outermost shell का जो distance है that is theoretically defined as atomic radius, और you can say nucleus के साथ outermost electron का जो distance होता है that is the atomic radius, right? ठीक है ना? Yes, sir. Now tell me one thing. क्या इलेक्ट्रॉन का पोजीशन डिटरमाइन हो सकता है? यू हैव लर्नड एटॉमिक स्ट्रक्चर. No. क्या इलेक्ट्रॉन का पोजीशन डिफाइंड है फ्रॉम न्यूक्लियस? N- No, sir. नहीं है. We have learned de Broglie hypothesis, we have learned Heisenberg's uncertainty principle, so we have learned quantum mechanical model. So electron is basically like a probability cloud, right? We define a probability region, right? There is no defined boundary of atom. तो फिर in reality how atomic radius is measured, क्योंकि theoretically जो defined हुआ है वो reality में नहीं है, right? There is no Yes, sir. defined boundary for an atom. तो Hmm. how do we measure atomic radius? तो atomic radius measurement का कुछ टेक्निक होता है, जैसे कि x-ray crystallography, you can see there is spectroscopy, x-ray crystallography, there is spectroscopy, electron diffraction. These are different types of methods based on which जिससे तुम atomic radius measure कर सकते हो. But atomic radius can be of different types depending on from which combined state तुम atomic radius measure कर रहे हो, because normally the elements are found in combined state except inert gas, right? तो जो metals होता है वो metal cluster में मिलता है, जहाँ पे वो metal एक metal atom दूसरे metal atom के साथ bonded रहता है, which is known as metallic bond. ठीक है? जो नॉन मेटल्स होता है वो यूजुअली कोवैलेंट मॉलिक्यूल बना के रहते हैं, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड में होता है, राइट? और अगर मेटल नॉन मेटल एक साथ होता है तो आयनिक बॉन्ड में होता है. सो डिपेंडिंग ऑन कौन सा कंबाइंड स्टेट पे वो रेडियस मेजर हो रहा है, उस पे वी कैन क्लासिफाई द एटॉमिक रेडियस इनटू फ्यू कैटेगरीज. एक होता है कोवैलेंट रेडियस, ठीक है? तो इसमें यू आर मेजरिंग द रेडियस फ्रॉम ए कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब व्हेन द एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड. एक होता है मेटेलिक और क्रिस्टल रेडियस, तो इसमें तुम मेटल एटम का रेडियस मेजर कर रहे हो एंड द एटम इज बॉन्डेड विद अदर मेटल्स बाय मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है? और क्या हो सकता है? वी कैन हैव वैन डेर वाल्स रेडियस. वैन डेर वाल्स रेडियस इज स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंट फॉर दोज जिसका कोई कॉम्बाइंड स्टेट नहीं होता है, जैसे कि इनर्ट गैस. इनर्ट गैस अकेले रहता है, इट डज नॉट कॉम्बाइन विद एनीवन एल्स, तो इसके लिए वैन डेर वाल्स रेडियस होता है, राइट? विल डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन. तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद कोवैलेंट रेडियस, ठीक है? तो कोवैलेंट रेडियस क्या होता है? देखो, लेट अस टेक अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिख रहा है, देयर आर टू हाइड्रोजन एटम्स. कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है बिटवीन टू एटम्स. आई होप यू नो दैट, राइट? Yes, sir. एंड उस इलेक्ट्रॉन पेयर पे बोथ द एटम कंट्रीब्यूट्स वन इलेक्ट्रॉन ईच, मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन इक्वल शेयरिंग होता है कोवैलेंट बॉन्ड में. तो Yes, sir. आई होप यू नो कि जो शेयरिंग के लिए क्या होता है, ये दोनों एटम एक दूसरे के अंदर आ जाता है. ये पता है ना, जब शेयरिंग Yes, होता sir. है तो इस कॉमन जोन और शेयरिंग जोन पे इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है.
बाई दिस टू न्यूक्लियस। तो यहाँ पे दिख रहा है दिस ब्लू डॉट्स, दिस आर द न्यूक्लियस, ठीक है। वी हैव ए कोवेलेंट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो ये एक होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। H2 इज ए होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो होमोन्यूक्लियर मतलब क्या है? होमोन्यूक्लियर मतलब है दोनों एटम सेम है, ठीक है। तो इन दैट केस Okay. कैन आई से कि ये जो दो न्यूक्लियस है इसके बीच जो डिस्टेंस दैट कैन बी कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये दो हाइड्रोजन एटम के बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, एंड उसका जो आधा होगा दैट शुड बी द कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस इज बेसिकली हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन ए होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? Yes. डायग्राम से पता चल रहा है ना, ये दोनों Yes, sir. ब्लू डॉट के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका आधा कर दो, विल गेट द कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेट्स से RH इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो फिर ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ कोवेलेंट रेडियस। यस और नो? Yes. दिस इज फॉर ए होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल जहाँ पे दोनों एटम सेम है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट HCl, राइट, व्हिच इज ए हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों एटम है वो डिफरेंट एटम है। तो हाइड्रोजन इज द स्मॉलर वन, क्लोरीन इज द लार्जर वन। तो इसमें प्रॉब्लम ये है व्हेन द एटम्स आर डिफरेंट, तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है। हैव यू हर्ड एनीथिंग अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सो फार? Yes, we discussed a little bit in that second chapter, atomic structure. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इन दोनों में से कोई एक एटम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है उसको ज्यादा खींच सकते हैं, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू draw the shared pair of electron towards itself by some atom, by an atom, ठीक है। तो इन दोनों में Okay. एक किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा, तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बिल्कुल बीच में नहीं होता है, तो इट विल बी डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा खींच लेगा, राइट, Hmm. है ना। तो इसमें तो फिर क्या होता है, तो इसमें जो रिलेशन वो लीनियर नहीं होता। यू कैनॉट से कि ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दैट इज नॉट इक्वल टू कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम। दिस इज नॉट लीनियर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में नहीं होता है, राइट। बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस दोनों से अलग होता है, दोनों एटम से। इज इट क्लियर? Yes. तो जब ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट होता है तो उसमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, लेट्स से दिस इज कॉल्ड काई, दिस सिंबल इज कॉल्ड काई, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल है। तो डेल्टा काई मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सो दिस फैक्टर आल्सो कंट्रीब्यूट ऑन डिटरमिनिंग द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, RH plus RCl minus 0.09 डेल्टा एक्स। तो दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो कोवेलेंट रेडियस दैट इज मेजर्ड फ्रॉम H2 मॉलिक्यूल एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? तो ये कोवेलेंट रेडियस हो गया, कोई डाउट है? No, sir. So let us talk about metallic radius. तो metallic radius देखो, if you take any metal, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कुछ भी ले लो, तो ये सारे मेटल सॉलिड स्टेट में मिलता है, राइट। सॉलिड स्टेट मतलब बहुत सारे मेटल एटम्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब कैसे क्लोज आते हैं? बाई मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। तो एक मेटल एटम दूसरे मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है। और ये नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड स्टेट में वी कंसिडर द पार्टिकल्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, मतलब वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस में होता है सॉलिड स्टेट में कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। एंड ये क्लोजेस्ट स्टेट में क्या होता है, वी कंसिडर दैट the constituent particles are in contact with each other। तो यहाँ पे भी दोनों मेटल एटम को विल कंसिडर दे आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, राइट। तो ये दो मेटल का न्यूक्लियस है, तो दिस इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल एटम, राइट। तो इसका बिल्कुल आधा होगा एक मेटल एटम का रेडियस। सो लेट्स से RM इज द मेटेलिक रेडियस दैट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो कोवेलेंट रेडियस मैंने बता दिया, मेटेलिक रेडियस मैंने बता दिया। नाउ यू टेल मी कि इन दोनों में से व्हिच वन शुड बी द लार्जर वन एंड व्हिच वन शुड बी द स्मॉलर वन। Metallic radius should be larger अब क्यों होना है मेटेलिक रेडियस because लार्जर? the distance is larger
in the राइट, तो द रेडियस डिपेंड्स ऑन द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। पहले हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखते हैं, उसका आधा होता है रेडियस, ठीक है। अब ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मेटालिक बॉन्ड पे ज्यादा होता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक दो एटम एक दूसरे के अंदर आ जाते हैं, राइट, तो इसके लिए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाता है। मेटालिक yes sir. रेडियस पे दे आर नॉट penetrating inside each other, rather they're in contact with each other. So you can see the internuclear distance is higher at metallic bond, so metallic radius should be larger, right? Yes sir. Next क्या देखना है, van der Waals radius। तो आई एज आई टोल्ड यू, van der Waals radius इज बेसिकली क्या होता है, तो मतलब जिसमें एटम्स का बॉन्डेड सिचुएशन नहीं होता है, ठीक है, द एलिमेंट्स और द जो कॉम्बाइंड नहीं होता है, right? Now can you tell me that an element which does not go for combined state, और जो किसी के साथ combine नहीं करेगा, mostly the inert gases, Helium. right? inert gases का free atomic state होता है, वो किसी से combine नहीं करता है। तो इसके लिए तो फिर measurement क्या, और तो कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस कुछ भी नहीं होता है, तो ये हमेशा अकेले रहता है, राइट। तो इसके लिए van der Waals radius is the only possible radius which you can measure। अब van der Waals radius क्या होता है, तो मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखो, van der Waals radius is the half of internuclear distance between two closest atom in non-bonding state। समझ में आया? तो लेट्स से Mm, ये जो इनर्ट गैस है, इसको गैसियस स्टेट में क्या होता है, ये एटम्स बहुत दूर दूर होगा, दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं होगा, राइट। तो पहले hmm. क्या करते हैं, पहले ये इनर्ट गैस को सॉलिडिफाई करते हैं। तो सॉलिडिफाई करने का मतलब क्या है, सॉलिडिफाई करने का मतलब है कि तुम ये गैस एटम्स को करीब ला रहे हो, राइट, यू आर ब्रिंगिंग द Okay. एटम्स क्लोजर। बट Hmm. देखो, नॉर्मली इनर्ट गैस नॉर्मल टेम्परेचर पे तो गैसियस ही होता है, उसको सॉलिडिफाई करने के लिए टेम्परेचर बहुत 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 ड्रॉप करना पड़ता है, -200 300 वट, ठीक है। तो टेक्निकली आई कैन से ये जो सॉलिड भी होगा ना, इसमें दे विल नॉट कॉन्टैक्ट, दे विल नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो इसमें भी ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस में भी दे विल बी इन नॉन बॉन्डिंग स्टेट, एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। Yes sir. तो यहाँ पे देखो, ये दोनों इनर्ट गैस का एटम है, जिसको हम अगर इनर्ट गैस को सॉलिडिफाई करेंगे तो ये इनर्ट गैस एटम्स विल कम क्लोजेस्ट, बट इन नॉन बॉन्डिंग स्टेट, बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये नॉन बॉन्डिंग स्टेट पे ही दोनों क्लोजेस्ट एटम के बीच जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ कर दो, यू विल गेट द van der Waals radius। तो van der Waals radius is the half of non bonded internuclear distance, is it clear? Yes sir. तो van der Waals radius significant, मतलब this is significant for inert gases, but you can also measure it for other gases। जैसे if I solidify the chlorine gas, तो chlorine gas में क्या होगा, ये दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल्स बहुत करीब आ जाएगा। ये एक Hmm. रेड क्लोरीन मॉलिक्यूल है जहाँ पे दो क्लोरीन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड, ये एक योलो क्लोरीन मॉलिक्यूल है जहाँ पे दो योलो एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड, ठीक है। अब मैंने क्या Yes. बताया, van der Waals रेडियस, यहाँ पे तुम नॉन बॉन्डिंग सिचुएशन पे क्लोजेस्ट डिस्टेंस मेजर करते हो। तो यहाँ पे कैन यू टेल मी व्हिच टू एटम्स आर क्लोजेस्ट बट इन नॉन बॉन्डिंग सिचुएशन? कैन आई से दिस रेड क्लोरीन एटम एंड दिस येलो क्लोरीन एटम, they are the closest atom but in non-bonding condition? Can I say that? यहाँ पे एक How are they रेड closest? नॉन बॉन्डिंग सिचुएशन पे ये दोनों क्लोजेस्ट है ना, नॉन बॉन्डिंग सिचुएशन ये दो, Yeah. यहाँ पे तो कोवैलेंट बॉन्ड है, ये दो येलो क्लोरीन एटम पे कोवैलेंट बॉन्ड दिख रहा है, ये दोनों रेड क्लोरीन एटम के बीच कोवैलेंट बॉन्डेड है, तो ये वी डू नॉट वांट टू कंसीडर देम। मुझे नॉन बॉन्डिंग सिचुएशन पे क्लोजेस्ट डिस्टेंस कहाँ पे, ये रेड एटम एंड ये येलो एटम के बीच है। Yes sir. तो इन दोनों के बीच जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उसका हाफ ले लो, दैट शुड बी द van der Waals रेडियस, इज इट क्लियर? Yes. चलो, तो ये van der Waals रेडियस भी हो गया। तो अब बताओ, कोवेलेंट, van der Waals एंड मेटालिक रेडियस में व्हिच वन शुड बी द लार्जेस्ट वन? Van der Waals van der radius. Waals रेडियस, क्योंकि यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, राइट, क्योंकि ये नॉन Yes. बॉन्डिंग स्टेट में। आई होप दिस इज क्लियर।
ठीक है, Yes. तो ये साइज का ऑर्डर है। वैन डर वाल्स रेडियस सबसे ज्यादा होता है, फॉलोड बाय मेटेलिक रेडियस, ठीक है, followed by Yes. covalent radius. I hope it is clear. तो Yes. नेक्स्ट व्हाट इज देयर, आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस ऑफ कोर्स तुम्हें आयनिक बॉन्ड पे मिलेगा और आयनिक कंपाउंड में मिलेगा, ठीक है ना। Yes. अब आयनिक रेडियस को कैसे, आयनिक रेडियस का क्या होता है, आयनिक रेडियस विल डिपेंड ऑन व्हाट, दिस विल डिपेंड ऑन, आयनिक रेडियस विल डिपेंड ऑन व्हाट, आयनिक रेडियस विल डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ द आयन, ठीक है। तो Hmm. आयनिक आयन का जो चार्ज होता है उसमें आयनिक रेडियस डिपेंड होता है, चार्ज डिपेंडेंट, ठीक है। तो नाउ वी विल कम टू द आयनिक रेडियस, देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, व्हाई इज द वैन डर वाल्स रेडियस ऑलवेज द लार्जेस्ट अमंग द थ्री, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट, क्योंकि यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस नॉन बॉन्डिंग सिचुएशन पे मेजर होता है। नोबेल गैस के लिए व्हिच टाइप ऑफ रेडियस इज यूज्ड, इट शुड बी ऑलवेज वैन डर वाल्स रेडियस, क्योंकि इसका कोई कंबाइंड स्टेट और नहीं होता है, कोवैलेंट बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड कुछ नहीं बनाता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो लेट अस कम टू द आयनिक रेडियस, ठीक है। तो लेट अस टेक एन एटम ए एंड उसका ही एक कैटायन लेते हैं ए प्लस एंड एक एनायन लेते हैं ए माइनस। तो ये तीनों का रेडियस का ऑर्डर बताना है, ठीक है। हाउ डू आई, कैन यू टेल मी एनी आइडिया। तो ये तीनों में which one will have largest radius and which one will have smallest radius. There is a neutral atom, उसका कैटायन है एंड उसका एनायन है, सो हाउ डू आई डू दैट। So the normal atom should be in between the cation and anion. ठीक है, चलो But मान लेते हैं, फिर ए प्लस ए माइनस को कैसे डिसाइड करोगे। which one has a greater pull affinity for the electrons compared to the राइट, तो एक काम nucleus? करते हैं, तो ये तीनों में देखो, जब भी तुम आयन बनाते हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही रहता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाता है। इफ यू हैव ए कैटायन, इफ यू हैव ए कैटायन तो फिर यू हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इफ यू हैव एन एनायन तो यू हैव टू ऐड इलेक्ट्रॉन, बट न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो सेम रहेगा, राइट। Hmm. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड द we can find the number of protons per electron, ठीक है। पर Okay. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, राइट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन काम कर रहा है, तो दैट कैन बी प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का पावर तुम उस पर डिपेंड, ठीक है ना, वो जेड स्टार विच इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोटॉन्स पर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। Okay. Yes. चलो, तो यू कैन सी हियर, तो लेट अस टेक दैट न्यूट्रल एटम का एटॉमिक नंबर अगर जेड है, तो इसमें प्रोटॉन जेड होगा, इलेक्ट्रॉन भी जेड होगा, तो तो प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन रेशियो क्या होगा, 1, Hmm. ठीक है। कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, Z-1, तो प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इट शुड बी ग्रेटर देन 1, यस और नो। So it can be between 1 and 4, right? Like 1 एक से and 3. ज्यादा होगा ना, Z/Z-1 इज ग्रेटर देन 1। No, what I'm saying is it doesn't necessarily have to be 1, right? It can be 2 or 3 also. न्यूट्रल एटम के लिए तो 1 ही होगा ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही No, होता है। for cation and anion. फॉर कैटायन एंड एनायन इट शुड नॉट बी 1, एक से ज्यादा होगा या कम होगा। No, so I'm talking about electrons. It is written Z minus 1, but it can हाँ, also be Z minus 2, Z minus 3 हाँ, तो also, अगर right? वो चार्ज पे डिपेंड होता है ना, दैट इज Hmm. चार्ज, वो चार्ज पे डिपेंड होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। इफ यू आर देयर आर 2 पॉजिटिव चार्ज 3 पॉजिटिव चार्ज देन इट शुड बी Z-2 Z-3। अगर तुम एनायन में 2 3 नेगेटिव चार्ज है तो Z+2 Z+3 ऐसे होगा, Yes. राइट। तो यू कैन सी हियर, तो इफ देयर इज कैटायन तो प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाता है, एंड इफ दिस इज एनायन देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z से ज्यादा होगा, तो इन दैट Hmm. केस क्या होगा, दिस रेशियो शुड बी लेस देन 1, इज इट क्लियर। Yes, sir. तो कहना है इसे सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फिर कहाँ पे, न्यूक्लियर पूल सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा।
Nuclear where the pool ratio is will be, maximum. yes, cation. तो कैटायन के लिए न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा, तो फिर साइज सबसे छोटा होगा. Yes. तो कैटायन हैज द स्मॉलेस्ट साइज एंड एनायन विल हैव द लार्जेस्ट साइज आउट ऑफ दिस थ्री, क्योंकि इसमें Hmm. न्यूक्लियर पूल सबसे वीक होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होगा. क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes. और एनायन में तुम ये भी बता सकते हो कि तुम अगर सेम स्पेस में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो वहां पे रिपल्शन इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच. Hmm. और रिपल्शन से क्या होता है? साइज शुड इंक्रीज और डिक्रीज. With repulsion, size should increase. साइज शुड इंक्रीज. रिपल्शन मतलब दे विल पुश ईच अदर अवे. तो अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन that will pushed back by the other electrons or the inner electrons, तो radius should increase. तो Yes. basic logic is your, मतलब बेसिक लॉजिक इज जेट स्टार, जो प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो से तुम कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है. और Okay. एनायन के लिए रिपल्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द साइज. ठीक है. Okay. जैसे कि यहाँ पे देखो सोडियम एंड Na+. इफ यू लुक एट हियर, तो सोडियम, मुझे नॉर्मल लॉजिक पता है कि सोडियम प्लस का साइज छोटा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जेट स्टार ज्यादा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. Hmm. बट इफ यू लुक एट इट अदर वे, तो सोडियम, नॉर्मल सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11. तो जिसको हम अगर पुराना स्टाइल पे लिखे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281, तो इसमें आउटर मोस्ट शेल क्या है? थर्ड शेल, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है. Now, if you remove this electron, that means you are removing one shell, right? तो Na+ में आउटर मोस्ट शेल क्या है? सेकंड शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन. तो एक शेल ही रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब दिस इज द एक्स्ट्रा रीजन. यू कैन से Hmm. दैट Na+ का साइज बहुत छोटा हो जाएगा कंपेयर टू सोडियम. Cl के बीच रेडियस कंपेयर करना है, तो जेट स्टार इज वन लॉजिक, एंड देन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन विल इंक्रीज, दैट विल आल्सो कॉज एनलार्जमेंट ऑफ रेडियस. यस और नो? Yes, sir. Yes. ठीक है, चलो. तो लेट अस टेक Fe2+ एंड Fe3+. आयरन का दो कैटायन ले लेते हैं. Fe2+, एक में 2+ चार्ज है, एक में 3+ चार्ज है. सो कैन यू टेल मी कि इन दोनों में किसका साइज छोटा होगा, किसका लार्ज होगा? Fe3 plus should be smaller व्हाई? कैन यू टेल मी द लॉजिक? because since using that the previous knowledge that we know that configuration 2 comma 8 comma 8, नहीं, इसका अब then तो छोड़ो. बेसिक लॉजिक क्या है? जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन कम हो Z जाएगा, राइट? effective greater. राइट. तो Hmm. अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो प्रोटॉन्स पर इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, जेट स्टार विल इंक्रीज. तो फिर क्या Hmm. होगा? साइज छोटा होगा. तो अगर Yes, सेम sir. एलिमेंट का डिफरेंट कैटायंस ले रहे हो, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना छोटा होगा. एंड यू कैन ऑल्सो लुक एट दिस फॉर मैंगनीज. Mn2+ का साइज इज स्मॉलर देन Mn+, राइट? Yes, sir. चलो. तो यहाँ पे ऑलरेडी द लॉजिक 8 क्या है? मोर पॉजिटिव चार्ज मीन्स फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स, सो न्यूक्लियस पूल्स रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स टाइटर, तो रेडियस श्रिंक हो जाएगा. ठीक है. Hmm. और अगर ये एनायन के लिए पूछता हूँ, लेट्स से O- एंड O2-, इसमें किसका साइज ज्यादा होगा, किसका कम होगा? Out of what O2 minus should be greater. क्यों? लॉजिक क्या है? Same logic applied to the last question where Z effective will be lower. तो यहाँ पे जितना So, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो जेट स्टार कम हो जाएगा, राइट? yes, sir. जितना इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतना क्या होगा? प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन रेशियो कम होता जाएगा. जेट Increase. स्टार छोटा होने से क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा. दैट इज वन लॉजिक, जेट स्टार. दूसरा लॉजिक क्या Hmm. है? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे एक्स्ट्रा, उतना रिपल्शन बढ़ेगा. Okay. ठीक है. तो यहाँ पे Yes, देखो sir. सेम एलिमेंट का एनायन से, तो जितना नेगेटिव चार्ज साइज उतना ज्यादा होगा. Yes, sir. ठीक है. तो लेट अस टॉक अबाउट आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस. तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस मतलब क्या होता है? I आदित, have am I is audible? this is yes, sir. This is we cover this in atomic structure where electrons are the same, but the but the राइट. तो proton आइसो number is इलेक्ट्रॉनिक आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, राइट? बट
Yes, sir. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, प्रोटॉन डिफरेंट Hmm. होता है. So let us take N3 minus, you can see here N3 minus, O2 minus, A minus, neon, Na plus. तो देखो ये सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक Yes, है, sir. बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट. तो इसमें हम कैसे साइज कंपेयर करेंगे और इसका आयनिक रेडियस कैसे कंपेयर करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है, इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, तो प्रोटॉन जिसमें ज्यादा होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा. Hmm. सब में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन जिसका ज्यादा होगा उसका न्यूक्लियर पूल ज्यादा होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, साइज छोटा हो जाएगा. ये सुन, Yes, sir. तो Yes. प्रोटॉन ज्यादा मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर ज्यादा होना चाहिए, तो जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर साइज उतना छोटा हो जाएगा. ये सुन, Yes, sir. so for isoelectronic ion I can directly connect the size with the atomic number. तो ये सब में से सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है? नाइट्रोजन का, Z यहाँ पे 7 होता है, Hmm. ठीक है. और सबसे ज्यादा किसका है? एल्यूमिनियम का, Z क्या होता है इसमें? 13. तो कहना है इसे N3 माइनस का जो साइज है दैट शुड बी द लार्जेस्ट वन. N3 minus is the Yes. largest one and this is aluminum 3 plus का smallest होगा, Yes, sir. ठीक है. तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक Yes. आयन से सिंपली क्या देखना है, तुम्हें एटॉमिक नंबर देखना, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर साइज उतना छोटा होगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो, now let us focus on the individual factors which can affect the atomic radius. मतलब हर एक फैक्टर को इंडिपेंडेंटली देखेंगे कि कौन एटॉमिक रेडियस को कैसे अफेक्ट कर सकता है, बाद में देखेंगे इसका कॉम्बाइंड इफेक्ट क्या होता है. तो मैं एक एक फैक्टर बोलूंगा एंड यू हैव टू टेल मी दैट हाउ दैट शुड अफेक्ट द एटॉमिक साइज. द फर्स्ट फैक्टर इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब इट इज सिंपली द न्यूक्लियर पूल, राइट. Hmm. तो तुम बताओ, इफ द न्यूक्लियर पूल इंक्रीजेस और इफेक्टिव न्यूक्लियर साइज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए? Decrease. डिक्रीज. तो दे आर इनवर्सली रिलेटेड, Yes, sir. ठीक है. तो अब तुम्हें पता है लास्ट क्लास वी हैव लर्नड कि अलोंग द पीरियड जेट स्टार इंक्रीज होता रहता है, राइट. Yes, sir. पीरियड 2 में क्या होता है? जेट स्टार इंक्रीजेस बाय 0.65 पर स्टेप Yes. लेफ्ट टू राइट, ठीक है. तो Hmm. इसका मतलब अलोंग द पीरियड पे साइज छोटा होना चाहिए. तो बेसिकली अलोंग द पीरियड साइज शुड बी ड्रिवन बाय जेट स्टार. जेट स्टार शुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर अलोंग द पीरियड. ओके, Okay. डू यू गेट मी और नॉट? Yes, sir. डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप, तुम्हें पता है डाउन द ग्रुप जब तुम ऊपर से नीचे जाते हो तो हर एक स्टेप में क्या होता है? एक नया शेल ऐड होता है. Hmm. तो नया शेल ऐड होने से न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस शुड इंक्रीज, तो एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए? Decrease. क्या, एक नया शेल ऐड होने से एटॉमिक साइज Oh, डिक्रीज okay, हो okay, जाएगा? okay, okay. Got it, got it. क्या Since होगा? that, okay. No, I तो was applying that ना that जेट स्टार यहाँ constant पे, logic. आई एम, जेट स्टार इज वन फैक्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जेट स्टार से क्या होना चाहिए, बट इफ विद द एडिशन ऑफ ए न्यू शेल साइज क्या होना चाहिए? Increase. इंक्रीज. सो दैट इज द डोमिनेटिंग फैक्टर डाउन द ग्रुप. तो ये जो फैक्टर है एडिशन ऑफ न्यू शेल, ये डाउन द ग्रुप काम करता है, ये लॉजिक, ठीक है. तो Okay. एडिशन ऑफ न्यू शेल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और वैलेंस शेल विल इंक्रीज, ठीक है, एक नया वैलेंस शेल ऐड होगा. तो ये दूसरा फैक्टर हो गया, ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट शील्डिंग इफेक्ट. तो तुम बताओ, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका शील्डिंग इफेक्ट होता है. दे कैन शील्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने से जेट स्टार क्या होना चाहिए? शील्डिंग इफेक्ट के साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रिश्ता क्या है? शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो जेट स्टार क्या होना चाहिए? They are directly proportional. आर यू श्योर? अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड कर रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो फिर न्यूक्लियस का पावर कम हो जाएगा या ज्यादा? 1 second. So, if shielding effect will increase, then So what is shielding effect? The inner electrons are reducing the power of nucleus, na? hmm.
Inner electrons are reducing the power of nucleus on the outermost electron. So they are shielding the outermost electron from the nucleus. So nucleus का power तो कम हो रहा है. Okay, so you mean shielding effect as in adding more electrons into the atom? Shielding effect is basically key. The shielding caused by the inner electrons. तो inner electrons का shielding effect अगर increase होगा तो nucleus का जो power है तो वो Decrease. डिक्रीज होगा ना. तो बस ये चीज याद रखो कि शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दे आर इनवर्सली रिलेटेड. ठीक है. Okay. मोस्ट ऑफ द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज is connected to nuclear pool or nuclear charge and shielding effect nuclear charge inversely related. So न्यूक्लियर पावर के साथ बाकी प्रॉपर्टीज कैसे कनेक्टेड अगर तुम्हें पता है तो शील्डिंग इफेक्ट के साथ वो ऑपोजिट रिश्ता होगा. राइट. Hmm. तो अगर So the शील्डिंग greater इफेक्ट the इंक्रीज हो shielding रहा है सिग्मा, effect, अगर सिग्मा इज इंक्रीजिंग तो साइज क्या होना चाहिए? increase. साइज शुड इंक्रीज. समझ में आया? Yes, sir. अगर एक ही एलिमेंट का कैटायंस होता है तो उसमें क्या होगा? जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना साइज छोटा होगा. राइट. Yes, sir. तो फॉर पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायंस साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज. और अगर नेगेटिव चार्ज के लिए इट शुड बी द ऑपोजिट. फॉर द नेगेटिव एनायंस ऑफ सेम एलिमेंट जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज शुड बी लार्जर. राइट. Yes, sir. ठीक है. these are the factors. what are the factors I saw? जेड स्टार, एक एडिशन ऑफ इन और आउट एडिशन ऑफ ए न्यू शेल. तीसरा फैक्टर क्या है? सिग्मा और शील्डिंग इफेक्ट. देन क्या है? एक ही एलिमेंट का जो कैटायंस एनायंस उसके लिए जो फैक्टर है. तो वी हैव डिस्कस दिस थिंग्स. नाउ लेट अस नाउ सी व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ट्रेंड of atomic radius or ionic radius along the period and down the group. तो तुम बताओ along the period what should be the expected trend? Since the Z effective increases along the period, it will decrease. The Right. size will decrease. Right. So along the period, jet star increases. Right. Effective nuclear charge increases. That means size should decrease. That is the expected trend. Hmm. Expected trend. Down the group, major factor कौन है? Addition of a new shell. तो down the group Yes, size क्या होना चाहिए? increase. Increase. That is the expected trend. Now we are going to check that if the expected trend is followed regularly or there is lots of irregularities and exceptions. ठीक है. तो एक एक करके देखते हैं. तो फर्स्ट विल चेक पीरियड टू एलिमेंट्स. तो ये पीरियड टू एलिमेंट का एटॉमिक साइज विद द एटॉमिक नंबर ये प्लॉट है. तो वी हैव लिथियम. दिस इज लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. लिथियम टू फ्लोरीन विल चेक हाउ द एटॉमिक साइज वेरीज विद द एटॉमिक नंबर. ठीक है. तो यहाँ पे देखो लिथियम टू या क्या हो रहा है? साइज इज डिक्रीजिंग फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन Hmm. विदाउट एनी Yes. एक्सेप्शन. तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड ट्रेंड फॉलो हो रहा है. दिस इज पीरियड टू एलिमेंट्स. ठीक है. एक्सपेक्टेड ट्रेंड इज गेटिंग फॉलोड. Hmm. ठीक है. तो डाउन द ग्रुप भी देख लेते हैं. तो डाउन द ग्रुप यू कैन सी दिस इज ग्रुप वन. यहाँ पे वी हैव ग्रुप वन. तो ग्रुप वन में क्या हो रहा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. ठीक है. हाउ द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजिंग विद एटॉमिक नंबर. तो देखते हैं. तो यू कैन सी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तक क्या हो रहा है? इफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तक क्या हो रहा है? रेट ऑफ इंक्रीमेंट एक पर्टिकुलर स्लोप फॉलो कर रहा है ड्यूरिंग दिस थ्री. राइट. Hmm. बट जब व्हेनेवर पोटेशियम से रुबिडियम तो फिर स्लोप रिड्यूस हो गया. यू कैन सी द रेट ऑफ इंक्रीमेंट हैज ड्रॉप्ड. दिस इज द डॉटेड लाइन इज द इनिशियल स्लोप एंड दिस इज द करेंट स्लोप फ्रॉम पोटेशियम टू रुबिडियम. तो इतना ड्रॉप हुआ है रेट ऑफ इंक्रीमेंट. क्वालिटेटिवली एक्सपेक्टेड ट्रेंड इज गेटिंग फॉलोड. डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है. बट व्हाट Hmm. आई एम ऑब्जर्विंग हियर इज लिथियम टू पोटेशियम तक जो स्लोप मेंटेन हो रहा था, मतलब जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट था, potassium to rubidium certainly that rate has dropped. Right. Can you see that? Yes, sir. Yes. So that means this is not a linear variation. यहाँ पे irregularities है. Now how do I explain that? तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे पोटेशियम से रुबिडियम पे ये जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट ड्रॉप हो रहा है? हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? ठीक है. तो एक चीज देखो, लिथियम टू सोडियम एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या है? 8. सोडियम टू पोटेशियम एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या है? 8. राइट.
Yeah. there is difference of 8 in the atomic number. But potassium to rubidium देखोगे तो इसमें what is the difference in atomic number? The difference is 18. 18. पोटेशियम का 19 होता है, रुबिडियम का 37 होता है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, पोटेशियम एंड रुबिडियम के बीच फर्स्ट this 3D series has come. So these 3D electrons or 3D series has intervened between potassium and rubidium. तो इससे क्या फर्क पड़ता है ये 3D सीरीज आने में? तुम्हें पता है along the D series D contraction होता है. Did I explain that? Yeah. तुम्हें पता है कि along 3D series ये क्या होता है? हर एक स्टेप लेफ्ट टू राइट जेट स्टार इंक्रीजेस बाय 0.65. ठीक है. Sorry, I am jet star increases by 0.15, right? From left to right for every step. Do you I remember did not shielding effect में we have memorize. done that in during along the 3D series. जब तुम left to right हर एक step लेते हो तो jet star increases by 0.15 unit. Do you remember or not? I don't remember the exact value, so I did not memorize that. But I think it was 0.15 with the exception of, I think, copper. Right. तो ये 0.15 करके क्या हो रहा है? Gradually jet star is increasing. So for every step jet star is increasing by small amount. That should result in small contraction in every step. हर एक स्टेप में साइज का स्मॉल कंट्रैक्शन होना चाहिए. एंड आई थिंक आई एक्सप्लेन कि बट कलेक्टिवली इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे 10 D एलिमेंट्स है 3D सीरीज में, देयर आर 10 एलिमेंट्स. तो कलेक्टिवली स्कैंडियम टू जिंक तक एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है कलेक्टिवली, राइट? Hmm. फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड 3D सीरीज में एक कलेक्टिवली एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट? एंड दिस इज नोन एज डी कॉन्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे पोटेशियम एंड रुबिडियम के बीच दिस डी कॉन्ट्रैक्शन इंटरवीन्स, जो लिथियम और सोडियम के बीच नहीं था, सोडियम एंड पोटेशियम के बीच नहीं था. इज इट क्लियर? Yes. और यू कैन ऑल्सो से कि थ्रू आउट द डी सीरीज क्या होता है? डी इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग, और डी इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट रिलेटिवली पुअर होता है, राइट? Okay. So these are the reasons decontraction happens, and because of decontraction यहाँ पे जितना increment of rate होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है. Okay. ठीक है. The Yes. decontraction opposes the effect of, the decontraction opposes the increment of size caused by addition of a new shell. तो because of that जितना increment होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है. The slope has changed. Is it clear? Yes, sir. सेम थिंग विल सी इन ग्रुप 17. यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो फ्लोरीन टू क्लोरीन यहाँ पे क्या है? जो स्लोप था रेट ऑफ इंक्रीमेंट क्लोरीन टू ब्रोमीन, ये स्लोप चेंज हो गया. क्यों? क्योंकि क्लोरीन एंड ब्रोमीन के बीच देयर इज ए इंटरवेंशन ऑफ डीकॉन्ट्रैक्शन. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे क्वालिटेटिवली तो एक्सपेक्टेड ट्रेंड ही फॉलो हो रहा है, बट देयर इज लिटिल बिट ऑफ इरेगुलर वेरिएशंस व्हिच वी कैन एक्सप्लेन बाय डीकॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. The decontraction can be also called transition contraction. ठीक है. Okay. तो यहाँ पे rate of size increase from potassium to rubidium is smaller than that of sodium potassium because the first transition series intervenes between potassium and rubidium, causing decontraction that partially offsets the shell expansion. I think you already understood that. But why is it called transition? Because that D group series तो 12 is not transition series, included. D block तो transition series ही होता है ना. But group 12 is not included, right? Group 12 is not included. So that is why वो group 11 to 12 एक मतलब क्या होता है? एक significant change होता है ना. Okay. चलो. तो अगर decontraction का तुम जो लॉजिक है वो अगर along the lanthanide series अप्लाई करोगे, ठीक है? lanthanide series मतलब 4F सीरीज. तो अगर सेम कंसेप्ट तुम 4F सीरीज में अप्लाई करोगे, लेट्स से which is called lanthanide series, क्या होता है उसमें 58 to 73, 1. सॉरी 58 to 71, राइट? 58 to 71 4F सीरीज और lanthanide सीरीज होता है. तो उसमें यू विल फॉलो ए सिमिलर काइंड ऑफ कंसेप्ट. फ्रॉम 58 to 73 एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्शन होगा विच इज नोन एज lanthanide कॉन्ट्रैक्शन. एफ इलेक्ट्रॉन्स का वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है.
ठीक है, एंड वो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन विल बी एक्सपीरियंस्ड आफ्टर द 4f सीरीज। आफ्टर 4f सीरीज जो एलिमेंट्स मिलेगा उसमें वो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, उसका इफेक्ट उसमें आएगा। इज इट क्लियर? So it will decrease even more. It will stagnate even more. Right. The drop will be more. It will be more Hmm. significant. It can cause more contraction, right? Yes. ठीक है, चलो फिर देखते हैं। तो यहाँ पे ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक का जो ग्राफ है, तो ये नीचे वाला ग्राफ में यू आर सीइंग दैट हाउ द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज, हाउ द साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज इज चेंजिंग along द सीरीज। बीच में जो प्लॉट है दैट इज फॉर 4D सीरीज, एंड सबसे ऊपर जो प्लॉट है दैट इज फॉर 5D सीरीज। ठीक है, तो 3D सीरीज का सबसे नीचे वाला प्लॉट है, देन 4D Yes. सीरीज, एंड देन 5D सीरीज। ओके, Yes, sir. तो व्हाट डू यू सी, तो यहाँ पे वैल्यू है, स्कैंडियम टू जिंक वैल्यू है। सो इफ यू लुक एट द वैल्यू ऑफ द रेडियस, व्हाट डू यू सी कि स्कैंडियम नॉर्मली क्या होना चाहिए अलोंग द 3D सीरीज, साइज का कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, राइट? इवन इफ आई फॉलो द Yes. जेट स्टार का स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है फॉर एवरी स्टेप लेफ्ट टू राइट, तो उसके हिसाब से हर एक स्टेप में स्मॉल कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो स्कैंडियम टू टाइटेनियम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, टाइटेनियम टू वेनेडियम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेनेडियम टू क्रोमियम भी हो रहा है, बट क्रोमियम टू कॉपर यू कैन सी द एटॉमिक रेडियस इज ऑलमोस्ट द सेम, इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर Okay. कॉपर टू जिंक जाके एक इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस क्रोमियम टू कॉपर दैट रेडियस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? बिकॉज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि फॉर एवरी स्टेप लेफ्ट टू राइट along the 3D series, Jetstar is increasing by 0.15 and we are expecting a small contraction, right? Yes. बट यहाँ पे देखो डी ब्लॉक इज अ कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स का कंबाइंड इंटरप्ले होता है। ठीक है, तो हर एक स्टेप में ये फैक्टर्स का एक इंटरप्ले होता है, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले यहाँ पे डी ब्लॉक में जो सारे ट्रेंड्स एंड वेरिएशंस है ये बहुत इरेगुलर होता है। ठीक है, हर एक स्टेप के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम होता है एंड यू नीड टू नो दैट। तो यहाँ पे हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस ऑलमोस्ट दिस कॉन्स्टेंसी ऑफ एटॉमिक रेडियस? देखो यहाँ पे, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s1 3d5, राइट? Yes. ठीक है, तो इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? ऑल ऑफ देम आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 4s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3d में देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बट मैंगनीज पे क्या है? 4s2 3d5, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर आया मैंगनीज पे, Hmm. ये सुन। Yes. आयरन पे 4s2 3d6, so you can see there are two electron pairs, yes or no? Yes. मैंगनीज पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, आयरन पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज इंक्रीजिंग तो उससे रिपल्शन इंक्रीज होता है। ठीक है, यू कैन सी क्रोमियम टू कॉपर, यू विल आस्क यू विल और यू विल एक्सपेक्ट दैट जेट स्टार, सिंस जेट स्टार इज इंक्रीजिंग तो एटॉमिक साइज का कंट्रैक्शन होना चाहिए, स्मॉल कंट्रैक्शन तो होना चाहिए हर एक स्टेप में। बट यू कैन सी क्रोमियम टू कॉपर हर एक स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी इंक्रीज हो रहा है, yes or no? Okay. Hmm. तो that will cause some repulsion Hmm. and that will counterbalance the effect of jet star. So the effect of this repulsion caused by the added electron pair will counterbalance the effect of jet star every time. And that is why the size is almost same. Is it clear? Yes. अब देखो क्रोमियम टू कॉपर तक D10 हो चुका है, मतलब देर इज नो मोर D इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर में 3D10 है, जिंक में भी 3D10 होता है, तो मतलब और क्या होगा? और डी कॉन्ट्रैक्शन तो पॉसिबल नहीं है कॉपर के बाद, है कि नहीं? No. क्योंकि कॉपर में भी 3D10 है, डी फुल है, जिंक में भी 3D फुल है। तो कॉपर तक जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड था उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट एक्सपेक्टेड बिकॉज डी इलेक्ट्रॉन्स फुल है। बट कॉपर से जिंक तक और एक इलेक्ट्रॉन पेयर इंक्रीज होगा। Hmm.
कॉपर वाज 4s1 3d10, जिंक में 4s2 3d10 होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर विल इंक्रीज, बट दिस टाइम देयर इज Yes. नो डी कॉन्ट्रैक्शन, तो साइज इंक्रीज होगा जिंक पे बिकॉज ऑफ द Okay. इलेक्ट्रॉन पेयर। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. चलो, तो यू कैन सी दैट 3D में जो भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा है वो हर एक प्रोटॉन का 85% कैंसिल कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज इंक्रीमेंट ऑफ 0.15 इन जेड स्टार। Got it. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, Yes. along D series jet star increases by 0.15 for every step which should result in gradual contraction, but यहाँ पे क्या हो रहा है? As the electron pair increases, size almost same क्यों है? Because repulsion of lone pair counterbalance the effect of jet star. I hope it is clear. Yes, sir. तो ये तो मैं 3D सीरीज पे along the सीरीज बता दिया, तो डाउन द ग्रुप देखना है अभी। तो डाउन द ग्रुप अगर देखोगे तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट ग्रुप 3। तो यहाँ पे वी आर चेकिंग 3D एलिमेंट, 4D एलिमेंट, 5D एलिमेंट। एज यू नो दैट फोर्थ पीरियड में 3D सीरीज होता है, फिफ्थ पीरियड पे 4D सीरीज होता है, एंड सिक्स पीरियड पे 5D सीरीज होता है, पता है कि नहीं? Yes, sir. तो डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप हम 3D, 4D एंड 5D एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। विल स्टार्ट विद ग्रुप 3। तो ग्रुप 3 में क्या है? स्कैंडियम, इट्रियम एंड लैंथेनम। बट यहाँ पे देखो, स्कैंडियम एंड इट्रियम के बीच देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 18, इट्रियम एंड लैंथेनम के बीच देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 18। तो नॉर्मली व्हाट वी एक्सपेक्ट डाउन द ग्रुप क्या होता है? A new shell will be added, size should increase, and you can see that expected trend is followed. There is a regular trend group 3 में, scandium to yttrium, yttrium to lanthanum, a regular expected trend is followed. So there is no exception here. Is it clear? Yes, sir. बट ग्रुप 4 में देखो, ग्रुप 4 में क्या है? टाइटेनियम, जार्कोनियम एंड हाफनियम। तो ये 3D एलिमेंट है, जार्कोनियम इज द 4D एलिमेंट, हाफनियम इज द 5D एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो, टाइटेनियम से जार्कोनियम पे एक्सपेक्टेड ट्रेंड फॉलो हुआ है, एटॉमिक साइज हैज इंक्रीज, बट जार्कोनियम एंड हाफनियम के बीच साइज इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, So, तो so ये what is LCX? आई एम कमिंग टू दैट। तो ये जार्कोनियम एंड हाफनियम के बीच साइज ऑलमोस्ट सेम है, राइट? Hmm. तो दिस इज एन एक्सेप्शन यहाँ पे। तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस वन? तो इसका रीजन क्या है? मतलब The 4D एंड lanthanide 5D contraction. एलिमेंट, ग्रुप 4 पे जो 4D एलिमेंट है जार्कोनियम एंड जो 5D एलिमेंट है हाफनियम, इन दोनों का साइज सेम है, एंड दिस इज नॉट ओनली द केस ऑफ ग्रुप 4। तुम ग्रुप 4 टू 12, बाकी 4 से 12 तक जितना भी ग्रुप है सब में ये पैटर्न फॉलो होता है। व्हाट इज द पैटर्न? Okay. 4D एंड 5D जो एलिमेंट्स होता है दे हैव ऑलमोस्ट सेम साइज। अब इसका लॉजिक क्या है? यहाँ पे अच्छे से देखो, टाइटेनियम एंड जार्कोनियम के बीच द डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इज 18, ठीक है? और जार्कोनियम एंड Yes. हाफनियम के बीच द डिफरेंस इज 72, मतलब डिफरेंस इज 32. 32। अब ये क्यों है? तुम्हें अगर याद होगा कि ग्रुप 3 में लैंथेनम इज एन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट वायलेट्स आवर प्रिंसिपल। तो ये 5D में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, फिर 4f सीरीज में इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है। तो ये लैंथेनम 57 है, जहाँ पे एक्सेप्शनली एक इलेक्ट्रॉन 5D में आ जाता है, उसके बाद ये पूरा 4f सीरीज फिलअप होता है, ठीक है? तो लैंथेनम बच जाता है फ्रॉम लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनम के बाद 58 टू 71, दिस इज द 4f सीरीज जो फिलअप होता है, एंड थ्रू आउट दिस सीरीज 4f electrons keeps entering, which has a very poor shielding effect, right? Yes. तो थ्रू आउट दिस सीरीज क्या होगा? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जो कलेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन होता है फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, which is a very significant contraction known as lanthanide contraction, and ये contraction इतना significant होता है that it can counterbalance। normally हमें क्या पता है कि जार्कोनियम से हाफनियम एक नया शेल ऐड हो रहा है, तो उसके लिए जितना साइज इंक्रीज होना चाहिए, देखो एन इंक्रीजेस मतलब एक नया शेल ऐड हो रहा है, तो उसके लिए जितना साइज इंक्रीज हो रहा है दैट इज कैंसिल्ड आउट बाय द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन व्हिच इज इंटरवीनिंग इन बिटवीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? Got it. Yes, sir. तो ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज कैंसिलिंग आउट द इफेक्ट ऑफ साइज, इफेक्ट ऑफ न्यू शेल एडिशन। ठीक है, मतलब ये इतना पावरफुल है, एंड दैट इज व्हाई ये दोनों का साइज सेम हो रहा है। यहाँ पे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्ट, एलसी मतलब लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एंड इट मस्ट बी
राइट, नॉट क्रॉस। यहाँ पे इट्रियम एंड लैंथेनम, तो ग्रुप 3 में लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे दैट इज व्हाई रेगुलर ट्रेंड इज फॉलोड। बट इन द रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स, ग्रुप 4 to 12, 4D एंड 5D एलिमेंट के बीच लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन विल इंटरवीन, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप 3, यहाँ पे नॉर्मल इंक्रीज होता है बिकॉज नो स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन, नॉर्मल शेल एक्सपेंशन डोमिनेट्स। ग्रुप 4 to 12, यहाँ पे 4D एंड 5D एलिमेंट का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। आई होप देयर इज नो डाउट सो फार। No, sir. ठीक है, तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि as we go from 58 to 71, electrons fills the 4f subshell. These 4f electrons have very poor shielding ability because of where they are diffused and lobed shapes. Each added proton is not effectively shielded by the added 4f electron, so George star experienced by the outer 6s electrons steadily increase. There is a progressive shrinkage, right? That is the explanation of lanthanide contraction. ठीक है ना? Yes, sir. ओके, चलो, तो ये डी ब्लॉक में तो देख लिया कैसे क्या वेरिएशंस होता है। तो इफ यू लुक एट ग्रुप 13, तो ग्रुप 13 पे, सो मोस्टली नाउ वी आर फॉलोइंग द एक्सेप्शन एंड इरेगुलरिटीज। तो ग्रुप 13 पे क्या होता है, डाउन द ग्रुप तो साइज इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बोरोन टू एल्यूमिनियम साइज इंक्रीज हो रहा है, बट एल्यूमिनियम एंड गैलियम का साइज ऑलमोस्ट सेम है। तो एक चीज देखो, वेर एवर यू फाइंड सम इरेगुलरिटीज और exceptions down the group, that must be justified by decontraction or lengthened contraction। ठीक है, Okay. जब भी डाउन द ग्रुप तुम्हें इरेगुलरिटीज और एक्सेप्शंस मिलता है, दैट शुड बी मोस्टली जस्टिफाइड बाय डीकॉन्ट्रैक्शन और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि एल्यूमिनियम एंड गैलियम का साइज ऑलमोस्ट सेम है, क्यों है? बिकॉज ऑफ डीकॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इन दोनों के बीच डीकॉन्ट्रैक्शन इंटरवीन्स। फिर से गैलियम से इंडियम, ठीक है, इंडियम से थैलियम भी स्लोप चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। बट यहाँ पे दिस इज ए सिग्निफिकेंट इरेगुलरिटी और एक्सेप्शन। एल्यूमिनियम एंड गैलियम का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. So there is a question. The question is why zirconium and hafnium always found together in nature and notoriously difficult to separate। तो एक चीज देखो, ये जार्कोनियम एंड हाफनियम क्या है? ग्रुप 4 का एलिमेंट है। डी ब्लॉक में ग्रुप 4 का एलिमेंट है। जार्कोनियम इज ए 4D एलिमेंट एंड हाफनियम इज ए 5D एलिमेंट। सो व्हाट यू हैव Yes, sir. जस्ट लर्नड कि ग्रुप 4 to 12 जो 4D एंड 5D एलिमेंट्स होता है, दे हैव ऑलमोस्ट सेम साइज। यू हैव लर्न दिस? Yes. यस और नो? Adit, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. I said yes. So what? That means zirconium and hafnium का size is almost same because of lanthanide contraction. You already know that, right? Yes, in And the इन 4F दोनों, series. हाँ, और इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वैलेंस शेल का, दैट इज ऑल्सो सिमिलर। Hmm. तो साइज भी सेम है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सेम है, तो इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल आइडेंटिकल ही होगा। सो दे हैव सिमिलर केमिकल रिएक्टिविटी। तुम कोई भी रिएजेंट डाल दो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, ये दोनों एक तरीके से रिएक्ट कर जाएगा। दे विल रिएक्ट इन द सिमिलर पैटर्न। ठीक है, तो फिर इट विल बी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम बाय एनी रिएजेंट। सेपरेशन करने का तरीका क्या होता है? यू ऐड ए रिएजेंट, अब उसमें एक रिएक्ट कर जाएगा, दूसरा नहीं करेगा, राइट? और बोथ विल गिव डिफरेंट रिएक्शन। दैट इज हाउ यू कैन यूज रिएजेंट्स टू सेपरेट सर्टेन सब्सटेंस। बट यहाँ पे तो ये दोनों का केमिकल रिएक्टिविटी आइडेंटिकल है। क्यों? क्योंकि दोनों का साइज भी सेम है और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो भी सिमिलर है। दैट इज व्हाई दे हैव आइडेंटिकल केमिकल रिएक्टिविटी। तुम कोई भी रिएजेंट डाल दो तो वो सेम तरीके से रिएक्ट कर जाएगा। यस और नो? Okay. Yes. चलो जी, यहाँ पे साइज ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू साइज ऑफ कॉपर इन 3D सीरीज। तो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट, Yes, sir. क्योंकि ये क्रोमियम टू कॉपर जेट स्टार का जो इफेक्ट है दैट इज गेटिंग कैंसल्ड आउट बाय द एडेड लोन पेयर। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन पेयर इंक्रीज होने से जो रिपल्शन होता है दैट इज कैंसिलिंग आउट द कॉन्ट्रैक्शन साइज कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ जेट स्टार। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट राइट। चलो तो लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे बताओ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, यहाँ पे देयर आर फोर एलिमेंट्स लिथियम बेरिलियम बोरोन एंड नियॉन, सो व्हाट शुड बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, कैन यू टेल मी? Sorry, sir, can you repeat the question, please? क्वेश्चन नंबर 10, lithium beryllium boron and neon, so what should be the order of atomic radius? So all are second period elements lithium beryllium boron and there is neon. now एक चीज समझो कि जो इनर्ट गैसेस होता है व्हेन वी लुक एट द ट्रेंड पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस वी डू नॉट कंसिडर इनर्ट गैस इन द कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस के लिए ओनली रेडियस विच कैन बी मेजर्ड इज वैन डर वाल्स रेडियस, बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए मेटेलिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस ये सारे मेजर होता है, बट वी नो दैट Hmm. वैन डर वाल्स रेडियस इज सिग्निफिकेंटली लार्जर देन द अदर्स, Yes. राइट? तो यहाँ पे Hmm. तुम लिथियम बेरिलियम बोरॉन के साथ नियॉन को कंपेयर करोगे तो नियॉन का तो ज्यादा होगा ही, सो दैट इज व्हाई Hmm. वी डू नॉट कंपेयर द इनर्ट गैस रेडियस विद द अदर्स अलोंग ए पीरियड। क्यों? क्योंकि वो वैन डर वाल्स रेडियस होता है which is significantly larger than the others because of the experimental Oh, method। okay. ठीक So we है, don't even consider it. राइट? तो नियॉन का अगर कंपेयर करना है तो नियॉन का ही ज्यादा होगा ना, Hmm. Hmm. The नियॉन का ही order ज्यादा will. होगा। Hmm. तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तो नियॉन का ही ज्यादा होगा। अब तुम इफ यू लुक एट लिथियम बेरिलियम एंड बोरोन तो इन तीनों में देखो अलोंग द पीरियड Lithium लिथियम टू greatest. बेरिलियम टू बोरोन साइज छोटा होता जाएगा, Yes, sir. ठीक है ना? Hmm. Yes, sir. नाउ व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 11? Okay. क्वेश्चन So, नंबर 11 में क्या है? द अरेंज इन ऑर्डर ना सॉरी द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज आर्सेनिक बिस्मथ tin, lead, and antimony. So what I can see is my arsenic, bismuth, and antimony. These are group 15 elements. So we have group 14 elements. We have group 15 elements. तो group 15 में अगर मैं इसको लिखूं, there is arsenic, antimony, and bismuth, right? yes, yes, and then group 14 tin lead. Second, third. So ये period 4 पे है. This is period 5 and this is period 6. And group 14 पे कौन है? Group 14 पे we have tin and Tin lead. and lead. So Group this is tin period and 5 lead. and 6. तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस तो सबसे नीचे ही होना चाहिए पीरियड 6 में, yes or no? So lead should have the greatest. तो पीरियड 6 में ये दोनों लेड एंड बिस्मथ, अब उसमें बिस्मथ का छोटा होगा तो लेड इज ग्रेटर Hmm. देन बिस्मथ, सिमिलरली ये दोनों में, Tin ठीक है? is greater तो than ऑर्डर फिर क्या antimony. होना चाहिए इसमें? lead, bismuth, then Tin. tin, this and finally arsenic। Yes, sir. अच्छा ये स्कैंडियम जार्कोनियम हफनियम ये तो क्या है? स्कैंडिनियम इज ग्रुप 3 एलिमेंट, जार्कोनियम हफनियम फोर ग्रुप 4 एलिमेंट्स। जार्कोनियम हफनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, राइट? ये तुम्हें पता है, Hmm. दे आर ऑलमोस्ट सेम साइज बट दे मस्ट बी ग्रेटर देन स्कैंडियम क्योंकि स्कैंडियम 3D सीरीज में होता है, yes or no? 13 में Scandium is in period 4, so it will be lower. स्कैंडियम इज इन पीरियड, हाँ स्कैंडियम तो 3D सीरीज है, 3D एलिमेंट होता है। Hmm. अच्छा यहाँ पे देखो नायोबियम एंड टैंटालम have similar chemical reactivity, so they should have the same logic as zirconium and hafnium, right? Yes, sir. तो ये नायोबियम एंड टैंटालम कौन सा ग्रुप में होता है? ग्रुप 5 में होता है। नायोबियम इज द 4D एलिमेंट, टैंटालम इज द 5D एलिमेंट, तो इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है एंड दे आल्सो हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो केमिकल Because, रिएक्टिविटी भी सेम ही hmm. होगा, So do I है give ना? the reason due to 3D contraction? तो इसमें नहीं, Sorry, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, lanthanide contraction. Hmm, राइट? sorry, sir. लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन काउंटर बैलेंस इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ ए न्यू शेल। Okay. नया शेल ऐड होने के लिए नहीं, यहाँ पे रीजनिंग एक तो है सेम साइज which is caused by lanthanide contraction, दूसरा क्या है? similar electronic configuration, तो because of these two reasons they have semi similar chemical reactivity,
Okay. ठीक है, और ये 14 तो यू कैन इजीली डू, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. Yes, sir. ओके, सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. तो यहाँ पे यू हैव टू कंपेयर बिटवीन एफ माइनस, एच माइनस एंड सी एल माइनस. ऑर्डर ऑफ रेडियस कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट नहीं, यू हैव टू कंपेयर their radius, f minus, h minus, cl minus. Can you tell me? Okay, sir. So since they will all be covalent, we have to use covalent radius for No, this. these are all ionic. Ions है ना. Oh, okay. f minus, h minus, cl minus. So since chlorine is in period 3, it will be the greatest. So chlorine is greatest, and the proton is, then we have to calculate proton is to electron ratio. तो यहाँ पे Uh, देखो, ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, hmm. इसमें तुम But two इफ यू electrons आर here, sir. एडिंग वन इलेक्ट्रॉन तो ये H माइनस होता है. ठीक है, तो यू कैन सी यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अब हाइड्रोजन हैज अ वेरी स्मॉल साइज, वेरी मतलब वेरी स्मॉल साइज फास्ट पीरियड में. ठीक है, तो Hmm. it already, so we have, so one electron to two electrons, so we have 100% increase in electron, right, Yes. in very very small space. Can I say that? Yes. So that will cause severe electronic repulsion. अगर बहुत Oh. छोटा स्पेस में अगर तुम 100% इंक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे तो दैट विल कॉज सिवियर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, राइट. Hmm. Zinc. Is severe electronic repulsion because there is 100% increment of electron in very small space. You can see this repulsion will cause significant enlargement of size. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे H माइनस का साइज F माइनस से ज्यादा हो जाता है, बट इट कैनॉट एक्सपेंड बियॉन्ड Cl माइनस. फ्लोरीन में क्या है, फ्लोरीन में देयर आर 9 इलेक्ट्रॉन्स, अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो इट इज अराउंड 11 पॉइंट दिस परसेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है. Hmm. ठीक है ना, देयर इज एक्सपेंशन ऑफ 11, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, 11.11%. बट फ्लोरीन का साइज इज नॉट एज स्मॉल ऑफ हाइड्रोजन, राइट. तो इसका भी एनलार्जमेंट होता है, बट एच का जो एनलार्जमेंट होता है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दैट गोज बियॉन्ड एफ माइनस, राइट. Hmm. But just one question from Right. that. So, since we are can't we use that proton is to electron ratio for all three and then use that method? देखो, छोटा स्पेस में ना रिपल्शन सिग्निफिकेंट बन जाता है. छोटा स्पेस में रिपल्शन बिकम्स वेरी डोमिनेटिंग फैक्टर. स्मॉलर द स्पेस, दिस बिकम्स मोर डोमिनेंट. ठीक है, But what about for chlorine then? How do we consider it greater than hydrogen? तो उसमें ऑलरेडी दो शेल ऐड हो चुका है ना हाइड्रोजन से, दो बार, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड. तो उसमें भी रिपल्शन हो रहा है, बट वहां पे ऑलरेडी टू शेल्स हैव बीन एडेड. तो हाइड्रोजन में जो ये रिपल्शन हो रहा है दैट इज सिग्निफिकेंट, बट इट डज नॉट गो बियॉन्ड द रेडियस ऑफ Cl माइनस. दैट एनलार्जमेंट डज नॉट गो बियॉन्ड दैट. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, और एल, इसमें लिथियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस एंड एल्यूमिनियम 3 प्लस, इसका भी कंपेयर करना है. तो कैसे कंपेयर करें, तो आई कैन सी दैट मैग्नीशियम 2 प्लस Isoelectronic. एंड देयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो उसमें मैग्नीशियम मतलब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो साइज छोटा होना चाहिए. Hmm. So तो ये तो मैं बता सकता हूँ, आइसो hmm. इलेक्ट्रॉनिक आयंस ग्रेटर द एटॉमिक नंबर स्मॉलर द साइज. नाउ डू यू रिमेम्बर, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, दैट इज व्हाई
मैंने स्पेशली दिया है। अब देखो, लिथियम प्लस एंड मैग्नीशियम, लिथियम प्लस छोड़ो, डू यू रिमेम्बर दैट लिथियम एंड मैग्नीशियम आर इन डायगोनल रिलेशनशिप? Yes, sir. Yes. तो इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए बिकॉज ऑफ डायगोनल Yes. रिलेशनशिप। बट Hmm. व्हेन इट कम्स टू द आयंस, तो देखो मैग्नीशियम 2 प्लस में चार्ज ज्यादा है, इसका साइज छोटा हो जाएगा कंपेयर टू लिथियम प्लस। Hmm. लिथियम एंड मैग्नीशियम दे आर इन डायगोनल रिलेशनशिप, तो इसके लिए इन दोनों न्यूट्रल एटम का साइज ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, बट जब तुम आयंस लेते हो तो मैग्नीशियम में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड दैट इज व्हाई इसका साइज विल बिकम स्मॉलर। ठीक है, Yes, sir. so today we completed the atomic radius. Next class we are going to complete the ionization energy. ठीक है, so let us finish it here.